Welcome to another session of Practical Gyan. My name is Fianshu Sharma. I am an entrepreneur, public speaker and a trainer. In today's podcast, I am going to talk about biggest fear people have, that is regarding interviews. Generally, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, are you comfortable in going for an interview? The first reply they tell me is no. And I don't know why that happens. Generally, people feel anxiety, nervousness and butterflies in their stomach. लोग भगवान को भी याद करते हैं before interviews and I don't know why that happens a lot. So in today's podcast, my agenda would be to give you a little idea towards an interview, how you should look at it. I'm a panel to a lot of corporates, so I've been to the other side of the table also. And I would like you to come with me on the journey where you see the other side of the table, where you can actually understand that what a panel wants, how we think, how we select, what are the things that we are looking for in a candidate. So I would like to take you to the other side of the table. And then I would like you to understand what are the basic homework that you should do before going for an interview. And last but not the least, the myths and the realities. I've heard funniest things when it comes to interview. There is a myth that people have been saying that if you take more than 5 steps to reach the chair where your interview will be, the panel will not select you. ऐसा नहीं होता. अगर तुमने I don't know कह दिया या फिर तुमने 1 मिनट का पॉज ले लिया तो पैनल तुम्हें रिजेक्ट कर देगा. ऐसा भी नहीं होता. So these are few basic things that I'm going to tell it to you guys. It happens a lot of time when people come out of an interview hall and they tell you that ऐसा हुआ वैसा हुआ. I'm very sure it must have never happened with you कि एक पैनल आके तुम्हें बता रहा है कि हम क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे. So today a panel is going to tell you that what do we expect from candidate. Please make sure to listen to this entire podcast if you're looking to crack an interview. And I promise you, if you'll do the homework that I'll be giving it to you, you'll be able to crack 8 interviews out of 10 for sure, right? And जो 2 क्रैक नहीं हुए उस पर टेंशन मत लेना. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू. बेसिकली एक इंटरव्यू इसलिए होता है सो दैट द पैनल कैन चेक योर कमिटमेंट, whatever you are writing in your CV, whatever you are trying to show your knowledge about a particular subject or interest, उसके लिए कमिटमेंट चेक करते हैं वो लोग. द सेकेंड थिंग इज एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. They want to check whether this candidate can think logically or not. तो generally तुमसे बहुत सारे ऐसे वाले questions पूछे जाते हैं. Why you want to do this? Why you want to do that? वो सारे question इसलिए पूछे जाते हैं. They are not doubting on your choice. That basically they want to ask you is कि that whatever decision you are making, are you sure about it? Is there a logical explanation for that? So ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात तो I would like to tell you and give you a reminder that kind of questions which are generally asked in an interview, जो तुमने सुने होंगे या फिर तुमसे पहले पूछे गए होंगे या तुम्हारे फ्रेंड्स ने बताया होगा. Questions like introduce yourself, what are your hobbies, what are you doing, how are you doing, tell me something about yourself, what are your strengths, what are your weaknesses, where do you see yourself 5 years down the line. इन सभी questions में ना अगर तुम ध्यान से चीज नोटिस करो, एक चीज बहुत कॉमन है and that is you. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक इंटरव्यू में ना पैनल कुछ भी पूछ लेगा, बट उनको ये नहीं पता कि इंटरव्यू सब कुछ तुम्हारे बारे में होता है. कोई भी पैनल कोई भी XYZ चीज नहीं पूछेगा अनलेस तुम्हारे रिज्यूमे से या तुम्हारे इंट्रोडक्शन से या तुम्हारी किसी भी बात से वो चीज पता ना लग रही हो. एन इंटरव्यू, अ कंप्लीट इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड योर चॉइसेस, योर विजन, योर स्ट्रेंथ्स एंड योर पर्सनैलिटी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड ये अंडरस्टैंड भी सिर्फ तुम्हें ही करना है. तो ये वाली चीज ध्यान रखना. एक इंटरव्यू ना बेसिकली इज काइंड ऑफ अ सेल्स प्रोसेस जहां पे तुम सेल्स पर्सन हो एंड यू हैव टू सेल योरसेल्फ. ये बताना है कि आई विल बी परफेक्ट फॉर दिस रोल, आई विल बी एबल टू हैंडल ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच विल बी गिवन टू मी बाय द कंपनी. सो लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज. Take a piece of paper, divide it into 2 columns, right? On the left side, areas that you are comfortable in. On the right side, that areas you are not comfortable in. Write 4 things on the left side and the 4 things on the right side. Areas you are comfortable in can be studies, sports, anything that you feel that I am good at this thing, write it. Areas you are not comfortable in anything that you feel कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बी इट तुम्हारा स्पोर्ट्स हो और तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो तुम्हें लगता हो, टाइम मैनेजमेंट हो जो तुम्हें लगता हो कि यार मैं अच्छे से नहीं कर पाता, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स, राइट इट डाउन. टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम एंड पॉज दिस वीडियो एंड रिज्यूम दिस वीडियो आफ्टर 2 minutes. नाउ आई एम श्योर कि कईयों ने 2 चीजें लिखी होंगी, 3 और कईयों ने 4 भी लिख ली होंगी. तो फर्स्ट आई वांट टू स्पीक टू दोस पीपल जिन्होंने सिर्फ 2 से 3 चीजें लिखी हैं. तो यार सबसे पहले तो ये समझो, अगर 2 मिनट में तुम अपने बारे में 4 चीजें नहीं बता पा रहे तो इमेजिन करो पैनल के लिए कितना मुश्किल होगा तुम्हें समझना. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक पैनल तुम्हें सिलेक्ट या रिजेक्ट उसी बेसिस पे करेगा जो चीजें तुम बता पाओगे अपने बारे में. और अगर एक पेपर पे तुम अपने बारे में सिर्फ 4 चीजें नहीं बता पा रहे तो फाइट फिर अभी है.
तो सबसे पहले तो अपने बारे में और चीजें लिखो, अपने बारे में सोचो, सो दैट ऑन पेपर यू कैन सी दैट वेयर डू यू स्टैंड. With a lot of my students have faced this problem that they think that they'll be able to crack the interview. A lot of extrovert people, and उनके साथ जब वो इंटरव्यू में लेता हूँ, उनका मॉक इंटरव्यू में लेता हूँ, then they feel that यार ये तो मेरे साथ कुछ और ही हो गया, मेरे को तो लगा था मैं बोल दूंगा. They haven't thought about it. उन्होंने सारी चीजें लिखी नहीं हुई. अगर वो एक बार सारी चीजें लिखते, समझते कि मैं ऐसा वाला इंसान हूँ या ये वाली चीजें हैं मेरे अंदर और ये वाली चीजें मैं कंफर्टेबल हूँ, ये वाली चीजें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो बोल पाते. सो जिन लोगों ने 4 बातें लिख ली हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अब तुम मेरे साथ सेकंड स्टेज पे चलो. तो अगर तुमने एरियाज दैट यू आर कंफर्टेबल इन में लिख ली है, 4 बात एरियाज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन में लिख ली है, तो तुम्हें अब ये समझना है कि जब एक इंटरव्यू होता है तुम्हारा तो तुम्हें कौन सी वाली बातें करनी है. तो तुम्हें वो वाली बातें खुद मेंशन करनी है एक इंटरव्यू में, द एरियाज दैट यू आर कंफर्टेबल इन. एंड जब भी ऐसे वाले टॉपिक की बात हो जिसपे द एरियाज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन, यू हैव टू ट्राई टू स्विच इट फ्रॉम the areas that you are comfortable in. Just like any sales process. एक मिनट के लिए ये समझो कि एक सेल्स होती कैसी है, the entire sales process. सेल्स प्रोसेस में वो होता क्या है कि तुम लोग जनरली पॉजिटिव्स पे फोकस करते हो, यू ट्राई टू इग्नोर द नेगेटिव्स, एंड व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव सिचुएशन यू ट्राई टू स्विच फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव साइड. सो इंटरव्यू में भी यही करना होता है. जब भी ऐसी कोई बात हो, जब जिस एरिया में तुम कंफर्टेबल नहीं हो, वहां पे चुपचाप ऐसी वाली सिचुएशन पे आने की कोशिश करो जहां पे तुम कंफर्टेबल हो, जिस बारे में तुम बात करना चाहते हो. और सारे इंटरव्यू में यही वाली सारी चीजें करते होते हैं. कुछ भी जब ऐसी वाली बात हो तो तुम्हें पॉजिटिव साइड पे आना. सो नाउ लेट मी टेक यू थ्रू सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू सो दैट यू कैन हैव अ एग्जैक्ट आइडिया कि मुझे क्या करना है, कैसे करके मैं कौन सी चीजें फेस कर सकता हूं. सो मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड पेपर एंड यू कैन राइट थिंग्स डाउन. द इंट्रोडक्शन. जनरली मेरे से बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंट्रोडक्शन को कितने लंबा रखूं, कौन सी चीजें इंक्लूड करूं, कौन सी और बातें मैं बताऊं इस बारे में. सो द इंट्रोडक्शन शुड बी 1.5 मिनट अप्रोक्सीमेटली. इट शुड लीड टू द एरियाज ऑफ योर स्ट्रेंथ. यू शुड ऑल्सो मेंशन द थिंग्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट इन एन इंटरव्यू. बहुत टाइम स्टूडेंट्स ऐसी वाली गलती करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन में ऐसी वाली बातें बोल देते हैं जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते. तो उनको लगता है कि मैं खुद बता दूंगा तो पैनल इस बारे में मेरे से पूछेगा नहीं. इंट्रोडक्शन में वही वाली बातें करो जिस बारे में तुम सच में बात करना चाहते हो. अब कैसी वाली चीजें तुम्हें इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन आई जनरली टेल दैट हाय माय नेम इज फियांशु, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ पब्लिक स्पीकर एंड आई एम अ ट्रेनर बाय चॉइस. अगर मैं इतनी सी भी बात करूं तो तुम्हारे दिमाग में वो 3-4 चीजें आई होंगी, जैसे कि यार ये एंटरप्रेन्योर है, ये पब्लिक स्पीकर है और ये ट्रेनर है. और जो 4th चीज आई होगी, यार इसका नाम फियांशु है. ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है क्योंकि हमने दीपांशु, प्रियांशु, हिमांशु सुना हुआ है, फियांशु नहीं सुना हुआ. अब इमेजिन करो अगर तुम पैनल हो और तुम मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरी इंट्रोडक्शन बेस पे, तो तुम या तो पूछोगे भाई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता दो, या तो अपने पब्लिक स्पीकिंग करियर के बारे में बताओ, या फिर ट्रेनर किस चीज के बारे में हो, या फिर तुम्हारे नाम का मतलब क्या है. मैं जनरली ना ये नहीं बताता कि यार आई एम फ्रॉम अ सिटी ब्यूटीफुल विच इज कॉल्ड चंडीगढ़ एंड 10 अदर थिंग्स, बिकॉज मुझे चंडीगढ़ के बारे में बात ही नहीं करनी. जनरली होता है लोग ना बहुत बेसिक लेवल पे जाके ऐसे बताने लग जाते हैं कि मैं सर इस सिटी से बिलोंग करता हूं, और उस सिटी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता. सो मेक श्योर तुम सिर्फ वो वाली बातें इंट्रोडक्शन में करो जिस बारे में तुम बात करना चाहते हो. तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि फियांशु का मतलब क्या है, तो मुझे पता है कि फियांशु का मतलब मेरे को कैसे स्टाइल में बताना है. फियांशु का मतलब है फुल मून, तो मुझे पता है हाउ आई नीड टू एक्सप्लेन दैट एंटायर मीनिंग ऑफ माई नेम. मुझे पता है अगर मेरे से कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेगा तो मैं कर सकता हूँ, कोई पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करेगा तो भी मैं कर सकता हूँ, और ट्रेनिंग के बारे में बात करेगा वो भी मैं कर सकता हूँ. सो मैंने 4 चीजें मेंशन करी और चारों पे मेरा टिक है, और ऐसे ही तुम्हें आगे बढ़ना होता है. फिर आती है जनरली लोग बात करते हैं कि यार मैं अपनी फैमिली के बारे में क्या क्या बातें करूं. फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने जनरली नोटिस किया दैट पीपल टॉक रैंडम स्टफ इन इंटरव्यूज, क्योंकि एक तो वो नर्वस होते हैं और प्रैक्टिस नहीं की हुई होती. तो वो ये बताते हैं आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली और आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट. मेरी फैमिली में ये है वो है. अरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ये ज्यादा मैटर करता है कि तुमने अपनी फैमिली से क्या क्या चीजें सीखी, वो फैमिली की कौन सी वाली वैल्यूज हैं जो तुम अपने अंदर लेके आए. हाइलाइट्स एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली. आई हैव सीन दिस दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर रिलेटिव्स एंड अदर थिंग्स लाइक दैट. वो जरूरी नहीं होता. सो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड हाउ दैट एंटायर थिंग हैज हेल्प यू टू शेप अप व्हाट यू आर टुडे. सो फैमिली की वो वाली बातें करो जो तुम्हारे करियर को या तुम्हारी पर्सनैलिटी को हेल्प करने में अभी तक काम आई है. अगर तुम्हारी फैमिली में कोई डॉक्टर है और तुमने उनसे हार्ड वर्क सीखा है, तुमने ये सीखा है कि यार हाउ सीरियसली यू आर सपोज टू टेक योर करियर बिकॉज और योर प्रोफेशन, बिकॉज किसी की लाइफ डिपेंड करती है, तो वो वाली चीजें बात करो. तुम्हारी मम्मा हाउसवाइफ है
तो तुम वो बातें करोगे, आई हैव लर्न मल्टीटास्किंग फ्रॉम माई मदर। अगर कोई भी ऐसी वाली चीज है, ट्राई टू टेक few examples, try to take few things that has helped you to become this person that you are. उनकी वो वाली core values को adapt करने की बात करो rather than giving irrelevant information. Then secondly, the place and the location that you belong to. तुम्हें वो basic बातें जरूर पता होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी सिटी की पॉपुलेशन क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, why it is famous, how your city has helped you to become this person you are. ऐसी वाली बात करो। जो भी तुम बात करना चाह रहे हो, जो भी चीजें तुम मेंशन करना चाह रहे हो, वो ना इंटरव्यू में ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाय तुम्हें पता नहीं था और तुक्के से तुमने बोल दिया। इट शुड बी अ कंप्लीट प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट, इट शुड बी कंप्लीटली प्रैक्टिस्ड, इट शुड नॉट बी यार चल वहां जाके देख लेंगे। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बात करना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। बिकॉज काइंड ऑफ तुम इमेजिन करो ना, येस आई टेल माई स्टूडेंट्स टू बी रियल, बट एक बार ये भी इमेजिन करो तुम 20, 22, 25, 26 सालों के हो गए या 30 सालों के हो गए। अब तुम अचानक से 20 मिनट में कैसे अपनी 30 सालों की सारी चीजें बता दोगे? सो तुम्हें तुम्हारा टाइम लगेगा वो चीज एक्सप्लेन करने में कि तुम अच्छे हो, तुमने क्या क्या चीजें करी है। 30 ईयर्स का या 25 ईयर्स का, 22 ईयर्स का तुमने जो ज्ञान देना है उस बंदे को, पैनल को बताना है अपने बारे में, वो जब तक तुम प्लान नहीं जाओगे तुम नहीं कर पाओगे। फिर तो ऐसे होगा, अरे यार वो चीज रहेगी, काश मैं ये बात बोल पाता, ओहो मैं टेंशन में था इसलिए मेरी बात दिमाग से ये वाली बात निकल गई, और फिर तुम ये मुंह लटकाते हुए बाहर आ जाओगे। ये नहीं करना। You are supposed to go planned. Then let's talk about academics. Generally in academics, people tend to throw data on the panel. So they start with saying that I got a 9.3 CGPA, I got 86% in 12th standard and things like that. You are not supposed to throw data and data again and again. The panel will read it from your resume. वो वहां से पढ़ लेगा, तुम्हें वो वाली relevant information बतानी है जो तुमने करा है। For example, summer internships, प्रोजेक्ट्स, हाउ योर कॉलेज एंड स्कूल हैज हेल्प यू टू बिकम दिस पर्सन। अगेन तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या हेल्प करी है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ये जरूरी है बताना। सो लेट्स ऑल्सो डिस्कस सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अ पैनल आस्क यू, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट हैव यू लर्नड इन योर कॉलेज, what are the things that you have done and what are the things that you have learned from your summer internship or from your college. Have you participated in any other extracurriculars in the college? Tell me about the projects that you have done in the college. और जो last question है वो मेरा थोड़ा सा favorite है, how do you feel about your own performance? इस question का आंसर ना ये नहीं होता कि if you have scored 80, 70, 90 or whatever percentage you have scored कि वो अच्छी है बुरी है. It is about what do you feel about your own performance. तो suppose करो अगर किसी के 80 है और मैं ऐसे देख रहा हूँ 80, डू यू फील इट इज गुड? और मानो अगर किसी के 90 है और मैं तब भी ऐसे बात करूं 90, इट इज इन द बेस्ट ना। यहां पे पैनल तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ चेक करने के लिए कि हाउ डू यू रिएक्ट। उनको इस बात से कोई बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे 80 हैं और 90 हैं और तुम्हारे 75 और तुम्हारे 70 हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि ये मार्क्स क्यों हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दीज मार्क्स, और ये मार्क्स तुम्हारे क्यों आए, तुमने कितनी मेहनत की थी, वो ये जानना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये गलती मत करना कि जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं 80 और 85 पे भी आके लोग ऐसे बोलते हैं, सर आई एम रियली सॉरी सर बट आई ट्राइड वेरी हार्ड सर, मेरे से नहीं इतना ही हो पाया सर, मैं और मेहनत करूंगा। अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। वो बस ये देखना चाह रहे कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, दैट्स इट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जहां पे मेरे को लगता है ये सबसे घिसा पिटा फैक्टर है, क्योंकि जनरली लोग ने इसको समझते नहीं है और बस लिख देते हैं। जनरली पीपल राइट दैट माई हॉबीज इज लिसनिंग टू म्यूजिक, सर्फिंग ऑन नेट, वॉचिंग मूवीज और रीडिंग नॉवेल्स, स्विमिंग, ये वो सारी चीजें। इट शुड बी डायरेक्टली अबाउट हाउ दिस थिंग हेल्प्स यू टू improve your performance, how this thing helps you to rejuvenate। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना मेरे से ये पूछा, सर पैनल को हमारी हॉबी जानने में क्या इंटरेस्ट है, why is that panel interested to know about our hobby, हम जो मर्जी करें। इंटरेस्ट है क्योंकि पैनल ये देखना चाहता है what kind of person they are hiring। मानो अगर बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, जनरली लोग लिख देते हैं कि माई हॉबीज इज टू लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग नॉवेल्स, वॉचिंग मूवीज, सर्फिंग ऑन इंटरनेट, ऐसी बकवास। ये सबसे घिसी पिटी बेचारा सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन ना ये है, व्हाट आर योर हॉबीज एंड योर इंटरेस्ट। इस पे ना पैनल ये जानना चाहता है कि यार द काइंड ऑफ पर्सन जिसको हम हायर कर रहे हैं ये अपने फ्री टाइम में करता क्या है, इसके बाकी चीजों में कैसी इसकी पर्सनैलिटी है, ये क्या है, तब प्रोडक्टिव काम करता है। इट शुड बी आउटसाइड योर एकेडमिक्स, इट शुड बी समथिंग जो तुम रिजुविनेट होने के लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी जिमिंग, इट कैन बी ड्रॉइंग, इट कैन बी स्केचिंग, एनीथिंग यू वांट टू, इट कैन बी सिंगिंग, और इट कैन ऑल्सो बी लाइक that if you want to talk about video games but anything that you actually are good at, so it should not be something random. For example,
ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ सर मैं वीडियो गेम खेल लेता हूँ, मैं कहीं पे कुछ स्टैंड नहीं कर रहा उसका। इट शुड बी प्योरली बाय योर चॉइस। एक स्टूडेंट था मेरा इन 2017 और 18 में, ही गॉट एन एडमिशन इनटू अ टॉप बी स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हॉबी। हिज हॉबी वाज प्लेइंग वीडियो गेम्स। अभी पूरी बात ध्यान से समझना, हिज हॉबी वाज नॉट लाइक कि जैसे आप और मैं वीडियो गेम्स खेलते हैं, जब हम बोर हुए तो हमने थोड़ी सी वीडियो गेम खेल ली। ही वॉज एक्चुअली प्रोफेशनली इनटू इट। EA गेम्स करके एक कम्युनिटी है, एक कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड गेम्स वगैरह कराती है। दे हैव कॉम्पिटिशंस ऑनलाइन एंड वहां पे हिज रैंक ऑल ओवर इंडिया रैंक वाज 3। सो वहां पे हिज एजेंडा वाज कि मैं MBA करके मैं गेमिंग प्लेटफॉर्म को और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ इंडिया में, एंड दैट थिंग मेड सेंस। यहाँ पे हॉबी आपकी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके विजन में, आपके जो आपके फ्यूचर प्लान्स है उसमें आपको हेल्प करती है। ये चीज कैसे आपको रिजुविनेट होने की हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो एक्सरसाइज इज वन थिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स मी to be happy whenever I'm low on energy or wherever I have some specific tension towards work, I prefer to exercise. तो जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना और जब मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, it helps me to relieve my stress। और उस वक्त उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ, I sit and then I can concentrate even more on my work. So it helps me. So मैं एक specific amount of time है जो मैं जरूर एक्सरसाइज को देता हूँ। Then the next thing is strength and weaknesses. बहुत बार ऐसा होता है जब एक पैनल तुमसे पूछता है what are your strength and what are your weaknesses, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता है स्ट्रेंथ में वो कैसी चीज बोले। स्ट्रेंथ में ऐसी चीज बोलनी होती है दैट हैज बीन हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल्स, और वीकनेस में ऐसी चीज दैट हिंडर्स योर परफॉर्मेंस टू अचीव अ गोल। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी वीकनेस को ऐसे मोल्ड करके बताते हैं कि वो भी स्ट्रेंथ लगे। नहीं, ऐसे नहीं करना होता, और पैनल बेवकूफ नहीं है। ऑनेस्टली पैनल को पता लगता है व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, सो नेवर डू दैट। यू आर सपोज टू जेन्युइनली टेल कि तुम्हारी क्या वीकनेस है और वो चीज तुम कैसे इंप्रूव कर रहे हो। अब जेन्युइनली का ये मतलब नहीं तुम ये बता दो सर मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, सर मेरी तो वीकनेस ये है कि एक बार मुझे गुस्सा आ जाए, मैंने तो बंदा पीट दिया था। जेन्युइनली से मेरा मतलब है समथिंग दैट यू फील कि इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस कम रहती है, इस वजह से तुम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। इट कैन बी इंग्लिश कम्युनिकेशन। तुम ये बता सकते हो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वन ऑफ माई वीकनेस, अगर ये थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए तो आई कैन परफॉर्म बेटर और आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ बेटर वे। हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक पैनल क्यों ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन खराब हो। पहली बात, अगर तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन सच में खराब है तो अभी तक पैनल को पता लग गया होगा, क्योंकि वो तुमसे अभी 5-10 मिनट से बात कर रहा है। ये वाली चीज अगर तुम बताते हो तो तुम्हें ये जरूर दिखाना है कि तुमने पिछले अपने पास से किस तरह इंप्रूव किया है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड टेल देम दैट सर अगर आप मुझे 1 साल पहले मिलते तो मैं तो इतना भी नहीं बोल पाता था ना, अब मैंने मेहनत करी अपने आप पे, मैं इतना बोल पा रहा हूँ। सो हाँ, अभी भी वीकनेस है बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। एनीथिंग दैट यू आर एबल टू डू नाउ एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट बिफोर, और तुम अभी उस पर और अचीवमेंट चाह रहे हो और इंप्रूव करना चाह रहे हो, हाँ तो वो तुम्हारी वीकनेस हो सकती है कि अभी वो परफेक्ट नहीं हुई, तुम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो उसको इंप्रूव करने, एंड यू विल बी देयर सून। अ लॉट ऑफ पैनल विल आस्क यू दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years 10 years डाउन द लाइन। बेसिकली बाय दैट ऐसा नहीं है कि पैनल नीड्स एग्जैक्ट थिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर कि तुम कहां पे हो गए मुझे बताओ, क्या चीज सोचते हो, वो तुम्हारा करियर पूरा होगा या वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा कि नहीं। बेसिकली पैनल ये जानना चाहता है कि क्या तुमने कुछ प्लान बनाया है। मानो मेरे पास 2 लोग हैं, आई हैव 2 people to bet on, one is Ram and one is Shyam. Ram has a certain plan in life that he has planned that I'm going to do this job, I'm going to do this post graduation, and then I'll be doing this business or whatever. And then Shyam is that he has no idea कि लाइफ कहाँ जा रही है, उसका कोई प्लान नहीं है और वो बस चल रहा है कि जहां देखते हैं लाइफ कहाँ ले जाएगी। अब फॉर अ मिनट एज अ पैनल इफ यू हैव टू बेट ऑन राम और श्याम, तो तुम किसको पिक करोगे। हाँ, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ना राम की सारी ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे एग्जैक्टली और ना ही श्याम फेल हो जाएगा, बट फिर भी जब भी तुम्हें बेट करने का दिल करेगा ना, यू विल ऑलवेज ट्राई टू पिक अप राम, बिकॉज तुम्हें कहीं ना कहीं उम्मीद होगी यार इसने कुछ प्लान बनाया, कुछ तो सोच रहा है, एटलीस्ट ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर rather than some XYZ person जो बिल्कुल भी सोच रहे हैं he is careless about it। इसलिए पैनल जानना चाहता है। इसमें ना थोड़ी सी चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ। पैनल ये नहीं सोचता और ये नहीं जानना चाहता कि तुम कौन सी पोजीशन पे जॉब कर रहे होगे। बहुत सारा ऐसे टाइम होता है जब वेयर स्टूडेंट्स टेक इट कि पैनल शायद ये पूछना चाह रहे तुम मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे, तो जनरली बच्चे आंसर देते हैं कि सर आई विल बी अ मैनेजर इन दिस कंपनी, आई विल बी अर्निंग दिस मच सैलरी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नेवर मेंशन योर डेजिग्नेशन, the kind of money you will be earning. Always try to mention the vision that you have. चाहे तुम्हारे पैसे उतने मिले ना मिले, तुम्हें पोजीशन वो मिले ना मिले, बट वो जो विजन है वो तुम्हारा पूरा होगा, चाहे उसका A ऑल्टरनेट है और B ऑल्टरनेट है और you have alternate C।
तो फॉर एग्जाम्पल जब तुम बोलते हो कि सर आई हैव अ विजन, आई सी माई सेल्फ वर्किंग विद योर कंपनी, आफ्टर 10 years आई विल बी सीनियर मैनेजर, थिंग्स लाइक दैट, पैनल पहली चीज जो बोलता है वो बोलता है व्हाट इफ वी डू नॉट सिलेक्ट यू, और तुम चुप हो जाते हो क्योंकि उस बात का तुम्हारे पास आंसर नहीं होता, तुम्हारा तो सारा विजन खराब हो गया ना। तो तुम किसी कंपनी, किसी डेजिग्नेशन, किसी पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, तुम्हें ये बताना है तुम कौन से स्किल्स करना चाहते हो, कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, उन चीजों पे बात करना। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज इज I don't know is not suicidal in an interview. You guys can say I don't know, I'm sorry, but it depends how many times you say it. It depends how you say it. Suppose करो पैनल ने तुमसे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में पूछा और तुम्हें उसका आंसर नहीं पता, तो तुम स्माइल करके बोल सकते हो आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दीज सब्जेक्ट्स, एंड तुम शिफ्ट कर सकते हो। सो इग्नोरिंग द नेगेटिव्स एंड शिफ्टिंग टू द पॉजिटिव्स। सो आई डोंट नो तुम बोल सकते हो, बट क्या तुम हर आंसर पे आई डोंट नो बोल सकते हो? नहीं, फिर पैनल 100% तुम्हें रिजेक्ट करेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। If you have any specific question, please mention it in the comments. I promise that we'll reply back to you guys. Thank you for listening to Practical Gyan. See you in the next episode.